آج اپنی گپ شپ کا آغاز ایک سوال سے کریں گے۔ یہ سوال پورے پاکستان میں پوچھا جا رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال ہے، کیا جنرل عاصم منیر صدر بننا چاہتا ہے؟ تو اس کا سمپل جواب ہے جی ہاں۔ اب اگلا سوال ہے کیوں؟ تو وہ کیوں کی میں آپ کے سامنے تشریح کر دیتا ہوں، کیونکہ طاقت کا سارا ارتکاز تو عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت۔ لیکن دنیا پھر بھی چاہے کھٹ پتلی ہی سے ہی سربراہان مملکت سے انگیج کرتی ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ کمزوری بتائی ہے۔ عاصم منیر کے اندر یہ خلش یقیناً موجود ہے کہ اسے سینٹر سٹیج پر ہونا چاہیے، دور نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بطور باوردی صدر عاصم منیر اپنا یہ خواب پورا کر سکتا ہے۔ آپ کو بار بار مثالیں دی، ایوب خان صدر بنے، ظاہر ضرورت تھی نا صدر بننے کی۔ اس کے بعد یحییٰ بنے، اس کے بعد ضیاء بنے، مشرف بنے، تو انہوں نے کس کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے کہ یہ نہ بنے؟ جی، بطور باوردی صدر عاصم منیر اپنا یہ خواب پورا کر سکتا ہے۔ کیا زرداری اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا؟ اگلا سوال، عہدہ اور اختیار کون چھوڑتا ہے؟ آصف زرداری کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے یہ عہدہ چھوڑنا پڑے، جس کے فوائد بھی ہیں، جس کی شناخت بھی ہے اور جس کی بدولت تحفظ بھی، استثناء بھی حاصل ہے۔ کیا زرداری اس عہدے سے چپکا رہ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ پرانی کہاوت ہے کہ تالا اور کنڈی شریف آدمی کے لیے ہوتے ہیں کہ آئے، دیکھے اور واپس چلا جائے۔ چور کو تالے کنڈیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، فوج کو کسی آئینی، قانونی، جمہوری رکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر جنرل عاصم منیر نے طے کر لیا ہے کہ اب اسے صدر بننا ہے تو پھر آصف زرداری کو جانا ہی ہوگا۔ چھوٹی موٹی شرارتیں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن جانتے ہیں کہ نتیجتاً پیپلز پارٹی کو سندھ، بلاول ہاؤسز، شوگر ملز اور کھربوں کی لوٹ مار کے مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ یہ بڑا مہنگا سودا ہے۔ پیپلز پارٹی کیا رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ عاصم منیر نے پیپلز پارٹی پر کبھی اعتبار نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں چھین کر اور ساری جمع تفریق کر کے سادہ اکثریت نون لیگ کو دلوائی تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو سب سے تابعدار اور چاپلوس جماعت کے ہاتھ میں ووٹ ہوں۔ پیپلز پارٹی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا عاصم منیر جلد از جلد صدر بننا چاہتا ہے؟ اس کا علم تو اسے ہوگا۔ صدر بننے سے عاصم منیر کو اہمیت تو مل جائے گی، لیکن اس سے کچھ خطرات بھی منسلک ہیں۔ باہر کی دنیا میں باوردی صدر ایک آمر کے طور پر دیکھا جائے گا۔ جمہوری دنیا شاید اس سے انگیج کرنے سے ہچکچائے بھی، پھر یہ پتلی تماشا بھی ختم ہوگا اور فوج کا کٹ پتلی حکومت کے پیچھے چھپنے کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ لہذا سبھی کیلکولیشنز کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ کیا تحریک انصاف کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر تحریک انصاف سے مراد اس کے اراکین اسمبلی اور پختونخوا حکومت ہیں تو تحریک انصاف کو جو گنجائش ملنی تھی وہ پہلے سے مل رہی ہے، ورنہ یہ سارے لوگ جیلوں میں ہوتے۔ اگر تحریک انصاف سے مراد عمران خان ہے تو کوئی گنجائش نہیں ملنے والی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی چاپلوسی کے ہوتے ہوئے مجسم انکار کی گنجائش بھلا کہاں سے نکلتی ہے؟ یعنی جب وہ سارا حکم بجا لا رہے ہیں تو پھر عمران خان کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میرا نام محمود نیادی ہے۔ میری طرف سے
पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, उन सबको सुबह बखैर और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 17 मई 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी, आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी छुट्टी गुजारें और अपने फंसे हुए काम जो है वो आप करें। आपको याद होगा मैंने एक दफा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना वो इस चैनल को खत्म करने के लिए चैनल को अनसब्सक्राइब करें। तो उस वक्त मेरी जो है ना वो बात पे किसी ने कान नहीं धरा, लेकिन कल से मुझे ये खुशी है कि तकरीबन जो है वो 600 लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब किया है और ये नेचुरल वे है। यानी फिर आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकेंगे ना कि मैं जो है ना वो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या अपग्रेड हो गया या मैं किसी से डर गया हूं। तो ये नेचुरल वे है और अच्छा वे है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं आपके म्यार पर पूरा नहीं उतरा या नहीं उतरता, क्योंकि जो है ना वो मेरा अंदाज हो रहा है आप लोगों का जो सुनने की, आप लोगों की जो आप कह लें कि सुनने का जो लुत्फ है या आप लोगों की जो सुनने की जो हिस्स है वो मुख्तलिफ है और कुछ नहीं है, वो मुख्तलिफ है। मेरा कुछ जो है ना तो ये आप सिलसिला जो है ना वो जारी रखें ताकि मुझ पे जो है वो इल्जाम ना आए कि मैंने जो है वो किसी डर की वजह से चैनल क्विट कर दिया। और ये होता है, यानी इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो अल्लाह पाक के पास होते हैं। तो आप इस सिलसिले को न सिर्फ जारी रखें बल्कि इसको थोड़ा और बढ़ा दें ताकि फिर जो है ना ये ऑटोमेटिकली जीरो पे आ जाएगा। तकरीबन 2 दिनों में वो 700 जो है ना वो अनसब्सक्राइब हुआ है, जिसकी मुझे खुशी है मुझे। अगली बात जो आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि आप जानते हैं कि ईद जो है वो करीब आ गई है और हमारा टारगेट अभी जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो खासकर जो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहन भाई हैं, माए बहन हैं, उनसे दरखास्त है कि वो ये मैंने आपको बताया ये कुर्बानी बड़ी डिफरेंट होती है। ये कुर्बानी सिर्फ गरीबों के लिए होती है और ये कुर्बानी वहां पहुंचती है जहां पर शायद एक साल में गोश्त न पहुंचता हो। आज आपके सामने एक स्टोरी रखनी है एक आर्मी चीफ की और इसके अलावा कुछ दिलचस्प खबरें हैं, वो खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर जो है ये अतारी साहब हैं, आप जानते हैं कराची वाले, इनको पापा जानी भी कहते हैं। तो इन्होंने एक वार्निंग आपको जारी की है। वो वार्निंग ये जारी की है कि वॉशरूम के बाहर जो चप्पलों का जोड़ा पड़ा होता है तो उसको सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उसे मर्द इस्तेमाल करता है और उसी को अगर औरत इस्तेमाल करती है तो औरत गुनाहगार होगी। मैंने कहा आपको बता दूं और ये भी आपको बता दूं कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। बहरहाल वो औरत गुनाहगार होगी अगर वो चप्पल पहन के वॉशरूम में जाती है। ये पहली खबर आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी थी कि रावलपिंडी से एक बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, नाम है उसका तेजगाम। ये जाती है कराची और बड़े शौक से जो है वो लोग इस पे सफर करते हैं। सुना है अच्छी गाड़ी है, मैंने तो कभी सफर नहीं किया। कल इसकी एक वीडियो वायरल होती है इसके वॉशरूम की। वॉशरूम में क्या होता है, कमोड आप जानते हैं, कमोड में से जो सुराख है रफ़ा हाजत के लिए, बैठने के लिए, वहां से गाड़ी स्पीड में जा रही है और उस सुराख से लगातार मुसलसल जो है वो चिंगारियां वो ऊपर आ रही हैं, चिंगारियां। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो वफाकी वजीर रेलवे हैं एफिडीन अब्बासी, हनीफ अब्बासी बुरी तरह सिमाबिया तायर से हारे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको अगर घंटा सफर कराया जाए कि वो उस मोड़ पे बैठें और चिंगारियां इंजॉय करें तो बड़ा मजा आएगा। बहरहाल ये वीडियो बड़ी वायरल है। इससे आप पाकिस्तान के पूरे सिस्टम का, पाकिस्तान की पूरी गवर्नेंस का जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं। अगली खबर पे चलते हैं। एक दोस्त ने गिला किया है कि आप तहरीक लब्बैक का नाम नहीं लेते, तो मैं उस दोस्त को सिर्फ ये कहूंगा कि मैं कौन होता हूं तहरीक लब्बैक का नाम लेने वाला, और मैंने नाम लेकर क्या करना है, आप लोगों ने खुद क्या किया है। हालांकि जो खादिम रिजवी साहब थे उनका एक फिक्रा मुझे बड़ा पसंद था। वो कहते थे, फिक्रा तो पूरा मुझे नहीं आता, लेकिन वो कि जी जब क़यामत होगी
तो पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन। ये मुझे बड़ा पसंद था कि पता तो वहीं पे चलेगा ना कि कौन जीता है और कौन हारा है। उनका एक बड़ा जबरदस्त मदरसा है मुल्तान में, हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर आप हजरत अबू जर गफ्फारी के बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में जरूर जानें कि वो कैसे सहाबी थे। बड़ा सोच समझ के जो है वो रिजवी साहब ने, मेरा ख्याल है, नाम जो है वो रखा था। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर गफ्फारी के बारे में कहा था, ये शख्स अलहदा रहता है और अलहदा ही उठाया जाएगा। और उनकी क्या आदत थी ये कभी आप पढ़ें तो बड़ा आप लुत्फानंदोज होंगे उससे। तो बहरहाल आप लोगों ने खुद कुछ नहीं किया, आप लोग जो है ना वो बिल्कुल ही इस तरह धुएं की तरह उड़ गए। बहरहाल मैं तो अब नाम ले रहा हूं आप लोगों का। इस्लामाबाद और रावलपिंडी अफवाहों की जो है ना वो जद में है। सबसे बड़ी अफवाह जो चल रही है वो ये कि पाक फौज के साबिक सरबराह हैं जनरल इशफाक परवेज कियानी, जिनसे मौसूम किया जाता है ऑस्ट्रेलिया का जजीरा, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से कि इनको भेजा गया है कि इमरान खान को समझाएं, लेकिन एक बहुत बड़े सोर्स ने जो कि दोस्त है उसने जो है वो इनकार कर दिया है। उसने बिल्कुल इस खबर को झूठा करार दिया है कि जनरल इशफाक परवेज कियानी की कोई मुलाकात जो है वो इमरान खान से नहीं हुई और कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी है कि इशफाक परवेज कियानी शुरू से जो है ना वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की कोई डील लेकर गए हैं। बहरहाल जेल हुकाम जो है इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। हुज़ैफा रहमान जो है ये कहते हैं कि हम जो मेशत के इक़दामात कर रहे हैं बेहतर करने के लिए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2030 तक। ये आपको खुशखबरी सुनानी थी। अगर 2030 तक अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप रहते हैं, तो आप देखेंगे कि 2030 में ये 85 में खानदान आए थे। 85 से इनकी तकरीरें आप मुलायजा करें। 85 से अरस्तु एहसन इकबाल को सुने, कभी विजन 2010, कभी विजन 2025, कभी विजन 2020। ये इसी तरह खुद इनके जिस्म का कोई बाल जो है वो काला नहीं रहा, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि 2030 में जो हम मेशत के लिए जो कुछ कर रहे हैं 2030 में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों में से कोई पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान में नजर आएगा तो वो जो है ना किसी और जगह पे नजर आएगा। हुज़ैफा रहमान साहब। बहरहाल अगली खबर पे चलते हैं। सफीना खान, एक तो यहाँ पे हर कोई सीनियर तजज़ियाकार है, हम तो वैसे लुगड़ हैं, आपको पता है। सफीना खान एक पॉडकास्ट में शिरकत करती हैं और उनके सामने उनकी वीडियो चलाई जाती है। उस वीडियो में सफीना खान फरमा रही हैं कि कुत्ता पाल लेना लेकिन मरियम को लीडर न बनाना। बस ये चलाना था कि सफीना खान को आग लग गई और उन्होंने मेजबान के साथ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, हीरा मंडी तक वो आ गई और जो उन्होंने जो है ना हाल किया मेजबान का, मेजबान उनको कहते रहे कि आप प्रोग्राम छोड़कर चली जाएं, वो प्रोग्राम छोड़कर भी नहीं गई और जो उन्होंने जो है ना वो हशर किया वो आप अगर पॉडकास्ट देख लें तो आपको बड़ा जो है वो आप लुत्फानंदोज होंगे। सारा बानो जो है ना वो औरतों की इमरान खान है, कभी भी नहीं डरती और किसी से भी नहीं डरती, यकीन करें। इन्होंने कल फरमाया है कि 28वीं तरमीम की आमद है तो अब अचानक फैसल वाडा को निकाला जाएगा किसी बिल से, क्योंकि फैसल वाडा का मुंह वैसे भी बिजू की तरह है, चूहे की तरह है, तो उसे निकाला जाएगा और वो टीवी चैनलों पे आकर कहेगा कि अगर किसी के बाप में जुर्रत है, किसी के बाप में, तो वो इस जो है ना वो आईनी तरमीम को रोक कर दिखाए। ये मोहतरमा सारा बानो फरमाती हैं कि अभी तक वार्ड नहीं आया, लेकिन उनको बता दूं मेरा ख्याल है कल परसों वो आ चुके हैं। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की है और उन्होंने पिंकी पे भी तबसरा किया है और उन्होंने पिंकी के हैंडलर्स पे भी तबसरा किया है। तो सारा बानो की ख्वाहिश पूरी हो गई है, फैसल वाडा टीवी पे आ चुके हैं। डॉक्टर उमर आदिल, ये बहुत बड़े एनालिस्ट है, ये कहते हैं कि एक शेरवानी जो है वो बिलावल के मुकद्दर में नहीं है। तो हम बड़े डर गए
कि शायद वज़ीर आज़म की शेरवानी उनके मुकद्दर में नहीं है या सदर की शेरवानी उनके मुकद्दर में नहीं है, तो डॉक्टर उमर आदिल ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जो दूल्हे वाली शेरवानी है वो बिलावल जरदारी के मुकद्दर में नहीं है। अब उन्होंने क्यों कहा, किन मालूमात की बिना पर कहा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो है उन्होंने ये कहा कि वो शेरवानी उनके मुकद्दर में नहीं है। आजकल कुछ वीडियो जो है वो वायरल है मिसाल मलिक साहबा की, हमें कोई इतराज नहीं है उनके ग्लासेस पे, उनके जो मलबूसात हैं, लेकिन आपका खावंद वो जेल में हो और वो इंडिया की जेल में हो और उसकी सजाए मौत की आमद हो फैसले की, और फिर इस तरह ये इनको स्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीब गिना जाता है मिसाल मलिक साहबा को। ये आजकल जो कॉलेजेस में जा रही हैं और फिर उनका जो हुलिया होता है, उनके जो मलबूसात होते हैं, जितना वो तैयार हुई होती हैं, तो इस पे जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन बड़ी बातें कर रहे हैं कि इस खातून का जो है शोहर वो इंडिया की जेल में है। बहरहाल इस पर मजीद तबसरा नहीं करेंगे। मतीउल्लाह जान का तबसरा आपके सामने रखते हैं। मतीउल्लाह जान जो है वो कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात जो है वो उनकी पहचान खत्म हो गई है, उनका वोट बैंक मादरत खत्म हो गया है। इसकी दलील उन्होंने दी कि आप अंदाजा करें कि इतना कुछ करने के बाद आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन है वहां पे पीटीआई को जो इंतखाबी निशान है वो नहीं दिया जा रहा। गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने एक पार्टी के साथ जो है वो इत्तेहाद करने की कोशिश की, तो वहां भी उनको निशान नहीं दिया जा रहा और आजाद डिक्लेयर किया जा रहा है। और ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं कि आप इलेक्शन से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि पाक फौज वो ये इलेक्शन करवाएगी कश्मीर में और गिलगित में। और एक बात ये याद रखें कि जर्नैलों ने मशहूर कर रखा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी कश्मीर में भी उसी की होगी, गिलगित में भी उसी की होगी। अभी आपने इंडिया में देखा कि किसकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म कौन है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, और तमिलनाडु में कौन जीता है, विजय। वो सख्त मुखालिफ है मोदी का, सख्त मुखालिफ, लेकिन वो जीत गया, वज़ीर आला भी बन गया है। ये जमहूरियत होती है। ये क्या बात हुई कि इस्लामाबाद में जो है ना हुकूमत है जिसकी, तो कश्मीरी उसी को वोट देंगे, क्यों देंगे, ये गिलगित वाले उसी को वोट देंगे। गिलगित, ये दोनों खित्ते बड़े पढ़े लिखे हैं, इन दोनों खित्तों में लिटरेसी रेट ज्यादा है और पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी जो है ना वो लड़कियां हैं, क्यों वोट देंगे। लेकिन आपको पता है वो पहले बना लेते हैं। और फिर अब तो एक और मजेदार काम, यानी प्रॉपर्टी के बाद या सीएसडीओ के बाद अब इनको जो है ना जो इलेक्शन का धंधा इनके हाथ में आया है ना, बहुत मुनाफा है इसमें, बहुत मुनाफा। यानी महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, मियां जावेद लतीफ कहते हैं, मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तीनों का ताल्लुक अलग अलग पार्टियों से कि पैसे लिए इन्होंने। कितना मजेदार काम है कि हारे हुए उम्मीदवार से पैसे लिए, 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ पैसे लिए इन्होंने जितवाने के। अब यानी अंदर क्या चाहिए, दो आंखें। आपको एमएनए का इलेक्शन जितवाया जा रहा है और फिर आप हराम खोर हैं 90%, तो आपके लिए 7 करोड़ या 8 करोड़ क्या मसला है, कोई मसला है आपके लिए, कोई मसला नहीं है। तो ये धंधा ये 2024 की इजाद है। और जब जितने भी अब इलेक्शन होंगे, जितने भी, तो वहां पर मखसूस फौजी अफसरों को भेजा जाएगा जो प्यारे हैं, और वो फिर जो है ना वहां से दिहाड़ियां लगाएंगे। बहरहाल अब बेफिक्र रहें, ये इलेक्शन फौज कराएगी। सरदार मोहम्मद चौधरी मरहूम पंजाब के साबिक आईजी थे, ये उनकी किताब है, मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं, जहान हैरत। मेरे पास तो एक नुस्खा था, तो वो मैंने जो है अपने एक मोहतरम व्यूअर को वो भेज दिया, यानी वो एक नुस्खा था मेरे पास, वो मैंने उनको भेज दिया। किताब पढ़ने वाली है, जाहिर है आपका जो है ना वो मिजाज नहीं है, लेकिन किताब पढ़ने वाली है। नाम ही जहान हैरत है। यानी आपको ये पाकिस्तान ये वाकई मौजज़ा लगेगा कि ये मौजज़ा है, ये क्यों खड़ा है।
خیر کھڑا تو نہیں ہے۔ 1971 میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں چودھری صاحب 1971 میں اسپیشل برانچ کے ایس پی تھے۔ صدر یحییٰ خان اور ایوان صدر کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ صدر کے مسلح محافظوں کے انچارج بھی تھے، گارڈز کے، لہذا انہیں صدر اور ایوان صدر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انچارج جو تھے انہوں نے اپنی آبیتی کے صفحہ نمبر 127 پر لکھا ہے، پولیس کے سپاہی ان دنوں ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور پولیس لائنز کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ یہ پولیس والے کہتے تھے، کنجر خانہ، ڈنگر خانہ اور لنگر خانہ۔ چوئی صاحب کا فرمانا تھا، صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیت تھا۔ اس کا سیکیورٹی انچارج کرنل بھی ہم جنس پرست تھا، قوم لوط سے تعلق رکھتا تھا کرنل۔ ایوان صدر میں دلال اور طوائفیں تھیں اور ان میں سے بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں اقلیم اختر المعروف جنرل رانی، مسٹر کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھی۔ یہ خواتین سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھی۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد چوئی صاحب کو جنرل رانی کے خلاف تفتیش کا موقع ملا۔ انہوں نے 23 روز تک اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس تفتیش کے دوران بڑے ہوش ربا انکشافات ہوئے۔ مثلا چودھری سردار نے اپنی آبیتی کے صفحہ نمبر 128 پر تحریر کیا، مجھے جنرل رانی نے بتایا، میجر جنرل خدا داد لاہور کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جنرل رانی اور میجر جنرل خدا داد نے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پوری گڈی لالے لالے بھائی لالے، پوری گڈی لالے، ساری گڈی لالے۔ یہ خدا داد بھی آ گئے ہیں، پہلی دفعہ نام سنا ہوگا۔ ان دنوں رفیق سہگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے۔ ان دونوں نے اسے ایک سودے کی پیشکش کی۔ یہ حکومتی معاملات چلا رہے ہیں۔ اگلے دن سہگل نے رانی سے فلیٹیز ہوٹل میں ملاقات کی، اسے 10 لاکھ روپے اور ایک نئی ٹویٹا کار پیش کی۔ اس دور میں 10 لاکھ نئی ٹویٹا۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خدا داد کمرے میں داخل ہوا، اس نے کار رانی کو دے دی اور رقم خود لے کر غائب ہو گیا۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، سارے یہ 71 کی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں اب خدا داد ہے یا قبر میں جو ہے نا پوری قبر بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے، یا ابو لہب کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہے خدا داد کا، یا ابھی اسے ایڈز ہوئی ہے، اس کو بہو اور بیٹے نے گھر سے باہر پھینکا ہوا ہے، یہ نہیں پتا۔ بہرحال وہ نکل گیا پیسے لے کر۔ جنرل رانی نے چودھری کو بتایا، رفیق سہگل بہت خوبصورت تھا اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ وہ ہر 2 منٹ بعد وہ عشق میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ بھٹو کے عشق میں سب سے پہلے گرفتار ہوئی، پھر یحییٰ، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی، مگر سہگل نے اسے مثبت جواب نہ دیا۔ اس انکار کی اس بیچارے کو بڑی دلچسپ سزا بھگتنا پڑی رفیق سہگل کو۔ ایک دن گورنر ہاؤس پشاور میں پارٹی تھی، وہاں جنرل رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی، آغا جی رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کردا، کام کردا ہے تو پتہ لگ دے، وہ نہیں کردا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، جب ملکہ الزبتھ جہاں آئی تھی تو وہ کس کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرے کی نشاندہی کر دی۔ جنرل یحییٰ خان نے رفیق سہگل کو حکم دیا، آج رات تم مارشل لا حکم کے تحت اسی کمرے میں سو گے۔ مارشل لا کون سی خدمات انجام دے رہا ہے؟ یہ آرمی چیف ہے، اس کے کندھے پہ پرنا ہے، اس کے منہ میں بیڑی ہے۔
रफीक इस हुक्म की तामील से इनकार की जुर्रत न कर सका। उसके बाद याया खान रानी से मुखातिब हुए, मोटी तुम इसके पीछे जाओ, खुदा हाफिज। रानी रफीक के पीछे रवाना हो गई। दोनों के दाखिल होते ही कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया। सफर नंबर 129। रानी ने पूछगछ के दौरान एक और भी वाकया सुनाया। उसने बताया शाह ईरान पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने कराची से वापस रवाना होना था। जनरल याया ने उन्हें अलविदा कहना था। शाह के जाने का वक्त हो गया, लेकिन जनरल याया अभी तक ख्वाबगाह से नहीं निकले थे। शाह लेट होना शुरू हो गए, मगर किसी को सदर की ख्वाबगाह में दाखिल होने की जुर्रत नहीं थी। उस कड़े वक्त में जनरल रानी काम आई। सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने रानी से दरखास्त की, तुम अंदर जाओ और सदर को बाहर लाओ। वो अंदर गई। उस रोज मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा नूरजहान सदर की ख्वाबगाह में थी। अंदर का मंजर इस कदर कराहत अंगेज था कि रानी जैसी की तबीयत खराब हो गई। कमरे का मंजर, उसने बड़ी मुश्किल से सदर को बाहर आने के काबिल बनाया। पैंट शर्ट पहनी, शलवार पहनाई। चोई साहब का कहना था रानी ने जर्नैलों, सियासतदानों और सीनियर अफसरों के साथ मेल मिलाप के नतीजे में बेपनाह दौलत इकट्ठी कर ली थी। जनरल याया खान के बरसरे इक्तदार आने के बाद गुजरात के एक मशहूर सियासतदान ने उसे 6000 माहवार अलाउंस देना शुरू कर दिया था। उस दौर में 6000 महीना है नहीं काम निकलवाने के लिए। बहरहाल इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने इब्तिदा में रिक्वेस्ट की तो उस पर आपने लाजमी अमल करना है, चैनल को अनसब्सक्राइब करने का और न देखने का। चोई साहब ने इंकशाफ किया, जब जनरल रानी के बयानात की रोशनी में जनरल याया से जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस खानदान को उस वक्त से जानता हूं जब मेरे वालिद आगा सादत अली की बतौर एसपी गुजरात में पोस्टिंग हुई थी। ये बहुत अरसा पहले की बात है। रानी मेरी बहन की तरह है, चीफ कह रहा है, जिसको रफीक सहगल के साथ कमरे में बहन को बंद किया। डॉट कनेक्टिंग करते हैं। चोई साहब ने इंकशाफ किया, जनरल याया हर रात अपनी पसंदीदा औरतों में से किसी एक को साथ लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर ड्राइविंग के लिए निकल जाता था। इन सड़कों पर सिक्योरिटी के अफराद पहले से मुतय्यन कर दिए जाते थे। बाज़ औक़ात सदर अपनी कार में, जिसकी छत नहीं थी, सीधा खड़ा हो जाता और बाज़ औक़ात सदर के कपड़े भी नहीं होते। क्या मंजर होगा। और मुहाफिज दस्ते के सामने अपनी दाश्ता के साथ छेड़खानियां करने लगता। उमेरी काम करना है तो पता चलना है। जी, मुसल्लह मुहाफिजों को एक मुस्लिम रियासत के सरबराह की ऐसी हरकतों पर जबरदस्त गुस्सा आता था। झूठ है सारा, कोई गुस्सा नहीं आता था। हमें कूड़े, पेंशना और तनख्वाह, फ्री लंगोर, सारा झूठ है, सारा झूठ है। बड़ा गुस्सा आता था। क्यों गुस्सा आता था? वजह, अभी गुस्सा आ रहा है किसी को? हरकत नहीं मौजूद। जी, झूठ है, गुस्सा आता था। मैंने सिक्योरिटी के इस मसले का जिक्र अपने बॉस डीआईजी कादी मोहम्मद आलम से किया तो वो सदर के खिलाफ बातें करने पर नाराज हो गए। डीआईजी, उसने आईजी बनना था, उसकी भी हड्डी नहीं रही होगी कब्र में। वो नाराज हो गया। उनका कहना था सदर को संगीन किस्म के मसाइल का सामना है, उन्हें इसके बाद और आराम और तफरीह की जरूरत है। सदर कितने महाजों पर लड़ रहे हैं, बांग्लादेश, सियासतदान, जमहूरियत, आमरीयत, अल्लाह की फौज, तो फिर तफरीह न करे, आराम न करे। जी, चोई साहब ने तहरीर किया, याया खान के पास ऐशो इशरत के लिए बहुत सी दाश्ताएं और कई ठिकाने थे। बड़ा खुशकिस्मत था। वो जहां कहीं भी होता उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज था। एक शाम वो मिसेस के एन हुसैन के घर गया।
یہ خاتون عرف عام میں بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے شوہر مشرقی پاکستان پولیس اکیڈمی میں ہمارے پرنسپل رہ چکے تھے اور ان دنوں اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کے آئی جی تھے۔ صدر نے 3 دن اور 3 راتیں وہاں گزاری اور ایک دن کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ آئے اور اس دوران کوئی بھی ان سے ملاقات نہ کر سکا۔ آرمی چیف ہے۔ چوتھے روز مسز حسین کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا، جہاں اسے اندرونی آرائش کرنے والی کے طور پر مستقل ملازم رکھ لیا گیا۔ 3 دن ٹیسٹ لیا آرمی چیف نے، وہ پاس ہو گئی، پھر مستقل ایوان صدر لے جایا گیا کہ اے خدمت کرسی، اے اسلام نہیں، اسلامی جمہوریہ نہیں، اے کوئی اسلامی نہیں، اے کوئی جمہوریہ نہیں، اے کوئی پاک صاف لوگ نہیں، اے ایک ایسا اڈا ہے کرپشن نہ، گند نہ، یہ سیوریج ہے، کوئی یہ اتھے جڑا ہے نا جی، یہ ساریاں گلاں نے، یہ صرف سائر علی بگا کو سنیا کرو۔ یہ پتر ہٹاں تے نہیں وک دے، بالکل نہیں وک دے، یہ پتر پینٹاگون وچ وک دین، یہ پتر وائٹ ہاؤس وچ وک دین، یہ پتر الیکشن یا سیٹاں تے وک دین۔ پیسے دیو سیٹ گھنو، کشمیر تساں دے گھنا ہے، گلگت بلتستان دے گھنا ہے، مال مارو اسمبلی پہنچو، اور ایسے لوگ جڑے اسمبلی پہنچون وہ قوم نے کتنی خدمت کرسون جی۔ اور اس کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر بنا دیا گیا، بلیک بیوٹی کے شوہر کو سفیر۔ یحییٰ خان کے مستعفی ہونے پر مسز حسین اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے اسلام آباد منتقل ہو گئی اور اپنے بہنوئی کمال حسین کے ساتھ رہنے لگی۔ کمال حسین وزارت خارجہ میں افسر تھا۔ یحییٰ خان کی معطلی کے بعد میں اس خاتون کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا۔ راستے میں نے اس سے پوچھا، فلاں موقع پر یحییٰ خان مسلسل 3 دن اور 3 راتیں تمہارے پاس کیوں ٹھہرا تھا؟ 1 منٹ بھی باہر نہیں آیا تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ صدر کو بنگالی میوزک سکھا رہی تھی۔ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ میوزک سکھا رہی تھی آرمی چیف کو۔ یہاں پہنچ کر میرا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کتاب بند کی اور سوچا، کیا 1971 اور 2026 میں صرف ہندسوں کا فرق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا ہم آج بھی یحییٰ خان کے دور سے نہیں گزر رہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سننے کے بعد چینل انسبسکرائب کر دیں۔ میرے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے اجازت دے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ لوگوں کے اور میرے مرحوموں کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل نہ کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ رحم کرے، اور کبھی کبھی یاد آئے تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔